Yes, good morning everyone. Today we will continue our remaining chapter number 7 and turn on the page number 10. Today we will discuss our topic of prepositions. Prepositions of place. Prepositions of place are behind, between, in front of, beside, over, under, up, down, inside and outside. Okay. Before completing the PAP 7.9, I will make you understand what is the prepositions again. Okay, what is the prepositions? We have read in a previous class also the prepositions. What is the prepositions? Preposition is an important part of the English language. It is used to show a relationship between a noun or pronoun in a sentence. In another word, in a sentence, it must always be followed by a noun or pronoun in a sentence. It can never be followed by verb. Okay, words such as in, at, and, on are prepositions that show somewhere or something is. क्या शो करते हैं ये? प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. प्लेस मतलब होती है जगह, और जगह का आंसर हमें कहाँ से मिलता है? वेयर से. तो इट गिव्स द आंसर ऑफ वेयर. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स. द प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस shows the answer of where. Answer the question of where. Clear? They tell us more about the position of noun or where the noun is. Clear? Now look at fill in the blanks using in, on or at suitably. First we will done this because in previous chapters we also read this in or at. Clear? Now look at the 7.9. Helen was born where she was born? Alabama. So in Alabama. Annie Sullivan arrived the killer's doorsteps. Then ate the killer's doorsteps. Annie method was to spell out words. Helen's palm. कहाँ पर लिखती है वो? On Helen's palm. Helen read sentences by feeling erase the words on cardboard. And the fifth is Helen studied two different schools. 2 different schools. Clear? Now words such as behind, between, in front of, beside, over, under. Behind means होता है पीछे. Okay? In front of means सामने. Beside means just पास में. Over ऊपर. Under नीचे. Up ऊपर. Down नीचे. Inside यानी अंदर. Outside यानी बाहर. And also tell us the place or positions of a noun. They answer the questions where. They are also known as the prepositions of place. Now you turn the page number 11. Now look at here the box. Here are some prepositions. In. First of all you say the in. In is the prepositions of place. Helen was in the garden. Helen कहाँ है? In मतलब होता है अंदर. Helen कहाँ है? Where is the Helen? Helen was in the garden. Garden में है. Okay. Second है आपका at. At is also a preposition of place. My brother was waiting at the bus stop. कहाँ पर वो उसका wait कर रहा है? At the bus stop. On. Annie spelled words on Helen's palm. कहाँ पे स्पेल कर रहा है वो? Helen's palm. Helen's के हाथ पे जो एनी है वो स्पेल्ड द वर्ड्स, स्पेल्ड करती है वर्ड्स को. कहाँ पर? वेयर? ऑन द पाम. उसके ऑन मतलब किसी चीज़ के ऊपर होना, वो भी कैसे? टच करते हुए. तो उसके पाम पर जब वो लिखेगी तो उसको टच करेगी फिंगर से, तो इट मीन्स किसी के ऊपर कोई चीज़ होना और उसको टच करते हुए होना, ये कहलाता है आपका ऑन. ठीक है. और जो एट होता है वो किसी जगह के लिए आता है, किसी प्लेस के लिए आता है. जैसे कि द बस स्टॉप. बस स्टॉप इज ए प्लेस. इट मीन्स बस स्टॉप पर. ओके. नाउ टर्न द पेज number 12. Here we have the another preposition beside. Beside मतलब होता है जस्ट पास में खड़ा होना. Here you look the picture. Annie and Helen
stand together. Helen is beside the Anne. Anne is standing beside Helen. Anne जो है वो खड़ी हुई है, कैसे खड़ी रही है, हेलन के बिसाइड, एकदम पास में खड़ी हुई है, ठीक है। तो बिसाइड मतलब होता है उसके बगल में खड़े होना, पास में खड़े होना, क्लियर। अंडर, नेक्स्ट है आपकी अंडर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज अंडर एंड अंडर इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अंडर मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे होना, उसको कवर करते हुए नीचे होना। हेलन प्लेस्ड हर हैंड अंडर द पम्प, जो पम्प है उसके नीचे उसने अपने हैंड को प्लेस्ड किया है, उसके जस्ट ऊपर, मतलब कि आपने कोई चीज़ नीचे रखी है, पर वो नीचे भी कैसे है कि ऊपर कोई चीज़ है आपके, आप उसको कवर कर रहे हो, देन इट शोज द अंडर, क्लियर। बिटवीन होता है आपका टू थिंग्स के बीच में कोई चीज़ होना, कोई उसे हम कहते हैं बिटवीन। वी यूज द बिटवीन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टू थिंग्स के बीच में कोई चीज़ होगी, देन वी यूज द प्रीपोजिशंस ऑफ बिटवीन। लाइक एने प्लेस अ पेन, एने ने प्लेस किया एक पेन को बिटवीन द बुक एंड द बॉक्स, बॉक्स एंड बुक के बीच में कौन है, ए पेन, क्लियर दैट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टू थिंग्स, ओके, देन वी यूज द बिटवीन, ओके। अगर मोर देन टू थिंग्स होंगे तो देन वी कांट यूज बिटवीन, वी यूज़ बिटवीन फॉर द बीच में बोलते हैं, बिटवीन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बीच में। तो हम उसके लिए कब यूज़ करेंगे, जब हम वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, ओके। अगर मोर देन टू होंगे देन वी डोंट यूज़ बिटवीन, क्लियर। नाउ बिहाइंड मतलब होता है पीछे, इन हिंदी वी कैन से बिहाइंड मतलब पीछे। हेलन स्टूड बिहाइंड द डोर, हेलन कहाँ खड़ी हुई है, डोर के पीछे खड़ी है, ओके। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है जस्ट सामने, तो द कैट इज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द डॉग, ओके, क्लियर। ओवर मतलब होता है किसी की सरफेस के ऊपर से होकर जाना। द बर्ड्स फ्लू ओवर द फ्लैग, जो बर्ड्स जो हैं वो कैसे फ्लाई कर रहे हैं, लैक के ऊपर, जो लैक है उसके ऊपर से फ्लाई करते हुए जा रहे हैं। नाउ यू कैन सी द पिक्चर, यहाँ पर देखिए वो लैक के ऊपर, ओवर यानी ऊपर से जाना, क्लियर। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज, देयर इज एन एक्टिविटी एंड द पेप 7.10 you can see, observe figure 4 and complete the paragraph using the prepositions. Hope you all are understood the meaning of the prepositions such as on, between, under, behind, over, inside. Inside मतलब होता है अंदर की ओर, outside होता है बाहर, okay, beside. And if you have any problem you will consult me, then I will explain you again all the prepositions, clear. Now we will do this activity of prepositions. Here we have some clues provided in the bracket. Now I completed this for you already. Now you can see Helen and her teacher. There is a picture, okay, there is a picture and there is a scene. उसको देखते हुए आपको इसको फिल करना है, clear that. Helen and her teacher. Annie went for a walk in the garden. There was a pond in the garden with a big tree next to it. Helen और उसकी टीचर Annie went for a walk. वो वॉक करने गए हैं गार्डन में, and there was a pond, वहाँ पे एक पॉन्ड भी है, in the garden with a big tree. उसके नेक्स्ट ही क्या है, एक बड़ा सा बिग ट्री है। Helen and Annie decided to sit under the tree. Helen और Annie ने क्या डिसाइड किया है कि वो बैठेंगी, कहाँ बैठेंगी, अंडर द ट्री। अंडर द ट्री मतलब जो ट्री का जो पेड़ है, पेड़ की जो पत्तियाँ, लीव्स वगैरह फैली हुई हैं उनके नीचे। देखिए यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं इन द पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये ट्री है और ट्री के यहाँ पे देखिए ये लीव्स वगैरह हैं, उसकी टहनियाँ हैं, ब्रांचेज हैं, और उसके नीचे, उसके जस्ट नीचे यानी ये कवर हो रहा है और कवर के नीचे वो बैठी हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अंडर द ट्री, क्लियर। द पॉन्ड वॉज बिहाइंड देम, एंड द पॉन्ड कहाँ है, देखिए इनके जस्ट पीछे क्या है, पॉन्ड है, क्लियर। तो बिहाइंड पीछे के लिए क्या आएगा, बिहाइंड। देन एनी फाउंड अ कैट इन द गार्डन एंड गेव इट टू हेलन. हेलन सैट इन बिटवीन द कैट एंड एनी. और देखिए हेलन कहाँ बैठी हुई है, हेलन बैठी हुई है बिटवीन द एनी. Here is the Annie and this is the cat. Two objects are there, cat and Annie, and बीच में कौन है, हेलन. तो हेलन कहाँ बैठी है, हेलन sat in between the cat and Annie.
एने बिगेन टीचिंग हेलन, एने स्टार्ट करती है हेलन को टीच करना द वर्ड कैट, क्या पढ़ा रही है उसको, कैट वर्ड। शी स्पेल्ड द लेटर्स ऑफ द वर्ड विद हर फिंगर, वो अपनी फिंगर से, लुक एट द पिक्चर्स, वो अपनी फिंगर से उसके हाथ पर क्या लिख रही है, हाथ मीन्स पाम, पाम यानी हथेली पर क्या लिख रही है, वो स्पेल कर रही है। तो ऑन हर पाम, तो वी यूज़ द प्रीपोजिशन ऑफ ऑन, उसको टच करते हुए उस पर लिख रही है कुछ, तो वो क्या कहलाएगा, ऑन। एंड हर्ड द बर्ड्स फ्लाइंग बैक होम, और उनको सुनाई दिया, एरे ने सुना कि द बर्ड्स फ्लाइंग बैक होम, फ्लाइंग बैक यानी शाम का जब इवनिंग टाइम हो जाता है तो जो सारे बर्ड्स होते हैं वो फ्लाइंग करते हुए अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। तो वो लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ओवर देयर हेड्स, उनके सिर के ऊपर से ऊपर होते हुए उड़ते हुए वो जा रहे हैं, ओवर देयर हेड्स। दे रियलाइज दैट इट वॉज इवनिंग, उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब क्या हो गई है, इवनिंग हो गई है, बिकॉज द बर्ड्स आर फ्लाइंग बैक टू होम। क्लियर। दे हैड बीन सिटिंग आउटसाइड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वो बहुत लंबे टाइम तक बाहर बैठ चुके हैं, आउटसाइड यानी बाहर। हेलन एंड एने डिसाइडेड टू गो बैक, हेलन और एने डिसाइड करती हैं कि वो वापस कहाँ जाएंगी, इनसाइड, इनसाइड यानी अंदर, बिफोर इट गॉट्स टू लेट, इससे पहले कि बहुत रात हो जाए, बहुत देर हो जाए, वो अपने घर अंदर जाएंगी, गो बैक। ठीक है, clear? I hope you all understood this activity. Now look at the next and turn the page number 14. Okay, page number 14 and the practice using prepositions of place, ये हमारा companion का part है। After completing this book activities in the studio, we will do our companion book chapter number 7 and we will complete this activity. Clear? Now look at the 7.11. Write prepositions of place for the following sentences. Use the words given in the help box. Here we have again the prepositions of place: on, beside, behind, under, in front and over. Here we see the pictures and look these pictures and complete the sentences. The duck is swimming. Duck swim कर रही है on the river. The cupboard is behind the boy. देखिए boy आगे बैठा है, boy के just पीछे क्या है, cupboard है। Clear? Now turn the page number 15. Clear? Here we see the picture of a girl. एक woman बैठी है, कहाँ बैठी है? The woman sat in front of a sofa. सोफा के just आगे बैठी है, तो in front of a sofa. Clear? If you have any problem, you will ask me. Clear? Now look at the next picture. Here is a lamp. Lamp is beside the bed. Lamp जो है बिल्कुल किसके पास में रखा हुआ है, beside the bed. Clear? The cat is under the table. और cat देखिए, cat कैसे बैठी है, टेबल के जस्ट नीचे बैठी है। Clear? तो अंडर है। The aeroplane is flying over the city. एरोप्लेन जो है वो ऊपर से होता हुआ जा रहा है, over the city. क्लियर? जो कोई चीज़ ऊपर से जाती है बिना टच किए हुए, जब कोई चीज़ ऊपर से जाती है देन वी से ओवर। क्लियर? नाउ टर्न द पेज नंबर 16. Summary. Fill in the blanks with the suitable prepositions along with an example for each. Now as it is your homework, but I have done for you to explain you, but if you want to write your own words, your own prepositions and fill these blanks, you can blank it. Okay, you can fill it. Clear that? Now in, यहाँ पे कुछ examples दे रखे। in, the dog is running in the park. Prepositions of place. Between, divide the cake between the two of you. केक को डिवाइड करना है किसमें, बिटवीन 2 persons. ओके, नाउ अब आपको यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशंस चूज़ करनी है और उसके ऊपर पहले उस प्रीपोजिशन जो आपने चूज़ किए हैं, चूज़ की हुई प्रीपोजिशन को आपको फर्स्टली यहाँ हेडिंग लगानी है, देन मेक द सेंटेंसेस. ओके, ये 4 दे रखे हैं आपको, इन 4 को आपको इस तरीके से फिल करना है. आई हैव चूज फॉर यू प्रीपोजिशंस ऑफ बिहाइंड. बिहाइंड मतलब पीछे, एंड द एग्जाम्पल इज राहुल इज सिटिंग बिहाइंड रमेश. एंड नेक्स्ट I wrote there prepositions of in front of. In front of में just सामने होना. Example देखिए, look at the example. The car was parked in front of the house. जो कार है वो पार्क की गई है just in front of the house. Clear?
प्रीपोजिशंस ओवर, ओवर क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर से होकर जाना, बिना टच करते हुए ऊपर से निकलना, वो क्या कहलाता है, ओवर। अ बी वॉज बजिंग ओवर माई फादर्स हैड। क्लियर। प्रीपोजिशंस ऑफ बिसाइड, एग्जाम्पल, वी सैट बिसाइड ईच अदर इन द थिएटर। थिएटर में हम एक दूसरे के बिसाइड बैठे हुए थे, पास में ही बैठे हुए थे। नाउ इट इज़ completed and the completed of your chapter number 7's book activity and the project time. Use the definite article and the positions of your place in your sentence. This is your project time. We will do in now. Look at, if you want to write your own prepositions like inside, outside, the remaining prepositions you can use in their page. If you have any problem, you will ask me, I will explain you again, you will consult me, okay? Otherwise you will revise the chapter 7 and learn the question answers and practicing of book activities, and then in next class we will do our companion book of chapter number 7 we will do, okay? Till then, take care. Hope you all are understood this. Thank you.